सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानाकर्मफलस्त्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। त्यागः शान्ति अनन्तरम्। Yeah, that's what Bhagwan has summarized. But now we'll say the prayer, which Arjun ki prarthana thi. Result of that prarthana is Bhagavad Gita teaching. So we'll say that seventh shloka of second chapter. Karpanya dosho upahat svabhavah कर्पण्यदोषोपहस्तभावस prachami tvam dharma sammudachetah पृच्छा tvam dharma sammudachetah yat shreyasat nishchitam bruhi tanme यक्षे हृतात्मच्छितं भूतिहर्तम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्याहो सर्वां परन्तम्। त्वां प्रपन्नम्. So this is a prayer, and last time I showed that logo we have created for Bhagavad Gita. When Arjun is sitting in front of Bhagwan and asking for exactly, that's the prayer Arjun is doing. So when we say this prayer, we can assume that Bhagwan Krishna is right there and standing next to chariot, and we are saying, Bhagwan, just guide us. And that's what the teaching starts. So it's a wonderful prayer, and प्रार्थना है भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं उसको. It's like that power in that. So we'll continue with our 8th chapter, and today some of people are out. There is a program in Pittsburgh, so local people, they said we are out but recorded, so I'm recording, right? So we are on the 8th chapter. The title of that 8th chapter last time we saw is Akshar Brahma Yoga. Akshar means imperishable, which doesn't get. Akshar means decay or depreciate or perish, but Akshar means which doesn't perish. So, and that's the reason. That's the reason. Sanatan Dharma, we have given the title to Bhagwan as Brahman. Brahman means ever expanding, ever growing, eternal, Sanatan. So there is no beginning or end. That's why in this Bhagwan says Akshar. And last time we saw that Bhagwan is saying that the Arjuna asks in 7th chapter, there are 6 questions, but basically there are 3 questions. What is Brahman? What is Adhyatma? And what is Karma? Usi ke parallel, there are 3 things. Adi Yagya, Adi Dev, Adi Yagya, Adi Bhut. But 3 things. So what is Brahman? What is Adhyatma? What is Karma? So Brahman, this chapter is going to talk about, and we all know, but in different ways Bhagwan is going to explain. What is Adhyatma? Adhyatma is about us, about me. So Jiva, we can say that really. And then Karma is, of course, the field of our action. So bottom line is there are 3 things. Jeev, which we are there. Jagat, which is the Sansar, which is the field of Karma. And Jagdish, which is Bhagwan to me. That's it. Sorry, all the teaching, anything we read, Mahabharata, Ramayana, Gita, Sahasranam, Yajna करें, कुछ करें, 3 ही चीज है घूम फिर के. एक भक्त है, भगवान है, और एक संसार है. That's it. So he's going to address different with this same thing. But last time we saw that Bhagwan said that Arjuna asked that, oh, how can someone remember the name of Bhagwan at the time of the death? That was his question. That the whole chapter is basically addressing that. But if you remember, that's why I say Bhagavad Gita is not a linear teaching. It can be linear in a way. If we say only 1st or 2nd chapter, it's still linear. Second chapter, Bhagwan is very focused about the Atma Gyan or Sankhya Yoga, we call it, but Atma Gyan. What is Atma? And 3rd chapter, he talks about Karma. That's it. And then after that, it's not linear.
All the chapters are there, we different names, but Bhagwan is back and forth, going back to something and bringing back the teaching. So last time we saw that Arjun asked that how somebody will remember Kaleshu Mam Anusmara Yuddhacha. मतलब युद्ध भी करता जा भगवान ने कहा और याद भी मुझे रख, लेकिन अर्जुन बोले कैसे याद रहेंगे. तो इफ वी गो बैक टू द 72nd लास्ट श्लोक ऑफ द सेकंड चैप्टर, उसमें भगवान ने अर्जुन को बोला भी था when he is explaining स्थित प्रज्ञ, and again स्थित प्रज्ञ is the role model. That's what we want to be, all of us in that situation. And what is स्थित प्रज्ञ? Very simple. The pragya means the wisdom, whatever I know. But the problem all of us have that I know, but I forget when the time comes. That's a human, that's a weakness. So I'm not talking about the professional world. In professional life also that happens. But psychological life, that's very common with all of us. Even the psychiatric doctors may confirm that, oh, they get disturbed too sometimes. क्या चीतू भाई, right? और दूसरों को ट्रीट करते हैं, लेकिन उनको हमें भी कभी कभी कष्ट होता है. ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को ही ठीक करते हैं. So it's a human nature, right? So that's what Bhagavan says. So Sthit Pragya is very important. So at the end of second chapter, we'll read that श्लोक. वहां भगवान ने बताया था कि किसको याद रहेंगे अंत में भगवान. सेम चीज इस पूरे चैप्टर में बात करें, लेकिन वो एक श्लोक में भगवान ने बता दिया था. सो विल गो बैक टू द 72nd श्लोक ऑफ सेकंड चैप्टर. बड़ा प्यारा श्लोक है. उसके पहले का 71 एंड 72. विहाय कामान्य सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति. स शान्तिम् अधिगच्छति. And then 72. एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति. नयनां प्राप्य विमुह्यति. स्थित्वा अस्याम् अन्तकालेऽपि स्थित्वा अस्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति. ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति. आपके पास अगर हिंदी है तो राम जी पढ़िए, आपने तो आई कैन रीड हियर. Arjun, such is the case, such is the state of God realized soul. Having reached this state, he overcomes delusion, and established in this state, even at the last moment, he attains Brahmic bliss. Yeah, so भगवान is saying कि this state, if you reach, then भगवान ऑटोमेटिक आ जाएंगे. अभी फिर से 8 चैप्टर में समझाएंगे, but this way. So what is state? 70 श्लोक. 71 श्लोक में है विहाय कामान सर्वान, all the illegitimate desire, unwanted desires, विहाय कामान, सब चली जानी चाहिए. एक भी रहेगी तो भगवान याद नहीं आएंगे, ये पक्की बात है. And that is the reason whole sadhana is that. कुछ ना कुछ रेसिडुअल तो रह ही जाता है, but that is also has to. So भगवान से विहाय कामान सर्वान सारी पुमांश्चरति निस्पृहः. स्पृहा means passion. अभी मॉडर्न टाइम में तो एवरीबॉडी, oh, we should have passion for this. No, Adhyatma passion, Bhagwan is very clear. Bhagavad Gita is nispraha. Passion generates raga dvesh. I want to complete this. The moment I say I want to complete this, means you are working for result. And there is no guarantee of being complete. No guarantee in anything in this world. I say that I want to complete it. There was this Starliner went to space. Sunita Williams and that Chuck Wilmore, they went for 7 days. It was the plan. NASA just like company, their plan is successful, right? They went 7 days plan, they will go there, do something, come back. They're there for 3 months and they will come back in February 25th. इतनी टेक्नोलॉजी रहने के बाद, so no guarantee. वो वापस लाने में डर रहे हैं कि if they bring them, if not properly, then last time they lost 7 of the astronauts. No guarantee. In spite of NASA is the high tech, everything, they do that. So Bhagavan is saying nispraha. Spraha means passion for something. Something means you want to achieve it. And there is no guarantee. Then you become frustrated. Nirmamo. मोह नहीं होना है. Mama means मेरा. Nirmam से लोग लगाते हैं, nirmam means like emotionless. No, that's not Bhagavan is saying it. मोह नहीं होना. Nirmam. This, nothing is mine. Nothing is mine. सब लाइक सारा खेल तो वही है, मेरा 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 नाम, मेरा कंप्यूटर, मेरा घर, मेरा. निर्ममो. सब होगा लेकिन निर्मम. कृष्ण जैसे, कृष्ण खुद तो खुद ही एग्जाम्पल है उसका.
निरहंकार, अभी हम बात ही कर रहे थे मंदिर की, निरहंकार, ये अहंकार लेके तो पहुंच ही नहीं सकते कहीं। अहंकार इज अ वेट, thousands pounds of weight with you want to swim in the river, tying to your body। अहंकार तो इतना भारी वजन है कि उसको लेके आप कैसे तैरोगे पानी में, अगर बहुत सारा वजन बांध दिया जाए बॉडी में। अहंकार ऐसा है कि इस जीवन में आप अच्छी तरह रह ही नहीं सकते अगर अहंकार इज सच अ वेट। सशांति मध्य गच्छति, कितनी कंडीशन भगवान ने, सारी विहाय कामान्य, एंड देन निष्प्रह, निर्ममो, निरहंकार, सशांति, उस आदमी को शांति मिलती है। एंड शांति वाले को ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो जिसको ये, दिस इज स्थित प्रज्ञ की समरी है, लाइक स्थित प्रज्ञ। द प्रॉब्लम इज, हमारी प्रॉब्लम है कि वी फॉरगेट, बट स्थित प्रज्ञ इज ऑलवेज स्टैब्लिश, दिस विजडम इज ऑलवेज अवेलेबल टू दिस पर्सन। तो भगवान सेकंड चैप्टर में ये बता ही चुके हैं जो अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि कैसे मिलेगा। फिर भी अर्जुन ने पूछा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टीचर। सेम क्वेश्चन ही इज आस्क्ड, लाइक उस समय पूछा नहीं था, भगवान ने पहले ही बता दिया था कि किसको मिलेगी। लेकिन मे भी अर्जुन को अभी क्लिक हुआ कि अरे फिर पूछता हूँ मैं। Now he's asking the question which was already explained. But anyway, he's going to explain. Bhagwan is a good teacher. So we'll just repeat Shlok 8 and then move forward right now. Just quickly we'll go. Abhyas yoga yuktena Vyasa yoga yuktena chetasa nanya gamina chetasa nanya kamina paramam purusham divyam paravam pusham divyam yati partha anuchintayan। yati partha anuchintaya। I'll read Arjun, हिंदी अगर आपको पढ़ना है, I will read Hindi. that's good. okay. Arjun, he who wins his mind disciplined through yoga in the form of practice of meditation and thinking of nothing else is constantly engaged in contemplation of God, attains the supremacy, effulgent, divine Purush. That is God. हे पृथानंदन, नंद, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। या सी, वही सेकंड चैप्टर में सेम चीज भगवान हैज ऑलरेडी सेड कि, लेकिन अगर इट्स लाइक दैट, इफ योर पॉट इज फुल ऑफ समथिंग यू कैन नॉट एनी एडिशनल थिंग, बिकॉज इज अ पॉट इज टॉप्ड अप टू समथिंग। सो वहां भगवान ने बताया कामना, अहंकार, स्प्रहा, दीज आर ऑल विकार। इफ यू आर फुल ऑफ दोज विकार, भगवान कैसे याद आएंगे? सेम चीज भगवान इज सेइंग कि बट कैसे होगा? अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास शब्द बड़ा प्यारा होगा उनको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरी डे यू हैव टू डू दैट। एंड दैट्स ही सेज दैट सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सब all the time, even if you are doing a yuddha means whatever karma is a sign, even that time you just keep me in mind. And we'll talk this, actually we'll talk about maybe today and next time, and we'll do that। ये भगवान ने बताया कि कैसे मुझे याद रखना, बड़ी अच्छी टेक्निक है, वो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने खूब करी है, जिसको जप बोलते हैं। राम जी आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जप। देयर इज, वी विल टॉक अबाउट दैट। मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट? इसी भगवान ने बताया। तो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि उसी को याद आएगा जो अभ्यास युक्त से मुझे, ही इज एंगेज विद मी और इंटीग्रेटेड विद मी, वी कैन से। बट विल टॉक अबाउट दैट प्रोसेस, राइट? So we'll go to 9th श्लोक of 8th chapter. कविं पुराणाम अनुशासितारम Kavim Puranaman Anushitasaram अणोः अणीयामस् अनुस्मरेत Aroniyam Samanusmaredya सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् Sarvasya Dhataram Chintya Rupam आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। Aditya Varnam Tamasah Parastat। इनमें हिंदी में पहले या जो सर्वज्ञ, Okay. He who contemplates on all wise, ageless being, the ruler of all, subtler than the subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond human conception, effulgent like the sun, and far beyond the darkness of ignorance.
जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। या आगे बताएंगे भगवान। सो भगवान ने इसमें भगवान ने भगवान की क्वालिटी भी बताई है। जो ब्रह्मन क्या है भगवान, लाइक अणो मीन्स लाइक द एटम वी कैन से, और मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड उससे भी दैट इज सटलेस्ट एंड सटलर देन सटलेस्ट, अणु से भी छोटा जो है वो भगवान, क्योंकि ऐसा कोई देखता नहीं कि भगवान कहाँ है, राइट। एंड भगवान से धातारम, जो सबका ध्यान रखता है, अचिंत्य, जिसको आप लाइक यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट, लॉजिक नहीं लगा सकते, रैशनल। भगवान से आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य। अभी इफ आई आस्क समवन, हम खुद से भी पूछें कि देयर इज अ सूर्य, और सूर्य की किरणें कहाँ हैं, देयर इज, वी डोंट सी देम, राइट। We know because it is all over. Entire atmosphere is filled with solar rays. That's why we say there is a sun there. That effulgence, भगवान सिंह, that is, ये तमस, और उस प्रकाश से, जैसे सूर्य से अंधेरा चला जाता है, वैसे ये भगवान के ध्यान से, अभी आएगा हम जप करेंगे, भगवान के जप से वो अंधकार मिट जाएगा। That's what भगवान is actually alluding here. What he is going to say, he is alluding to that, क्या होगा। और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जब अभी आया, आई मीन इट इज वन ऑफ द वंडरफुल टीचिंग्स ऑफ आवर ऋषिज एंड आवर एंसेस्टर्स, राइट। सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक, बट ही इज डिस्क्राइबिंग भगवान, ऐसे भगवान को जो स्मरण करेगा, अनुस्मरित। अच्छा, इसमें बार बार स्मरण शब्द आया, इस पूरे चैप्टर में स्मरण बहुत बार आया, जिसको हम लोग हमारी कलोकियल लैंग्वेज में सुमिरन भी बोलते हैं। सुमिरन शब्द इज पार्ट ऑफ स्मरण, और स्मरण हैज कम फ्रॉम स्मृति। It's constantly available in my memory. That is Smaran. And we'll do that. And that the process to that is Jap, which will come, right. So now the next 10th slok. Prayana kale manasa chalena. Prayana kale manasa chalena. Bhaktya yukto yoga balena chaiva. Bhaktya yukto yoga balena chaiva. Bhruvor madhye pranamavesha samyak. Prabhava madhye pranamavesha samyak. Satam param purusham upayati divyam. Satam param purusham upayati divyam. Having by the power of yoga firmly held the life breath in the space between the two eyebrows, even at the time of death, and then contemplating on God with steadfast mind, full of devotion, he reaches verily that supreme divine Purush, God. वो भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रूकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। Yes. ये वाला टेक्निकल श्लोक है, और इस पे बहुत सारी कमेंट्री मिलेगी। जो लोग चक्र विद्या करते हैं, जो बहुत सारे, यू कैन थ्रू प्राणायाम यू कैन ब्रिंग दो, देयर आर ईला और पिंगला नाड़ी है, एंड देन मीट एट सुषुम्ना एट द सेंटर ऑफ द हेड, एंड यू कैन ब्रिंग योर प्राण देयर एंड लीव। वो ये बड़ा टेक्निकल श्लोक है, बट फॉर अ भक्त सिंपल इज दैट। उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरा नाम याद रहना चाहिए, दैट्स इट। That is a technique. It is a yoga practice by you can focus your mind while leaving the body. But हमारे तो संतों ने बोला है कि ये सब करना क्यों है, नाम याद रखो भगवान का, करते रहोगे जब तो याद आ जाएगा तो निकल जाएगा सब आसानी से। ये बड़ा टेक्निकल श्लोक है। There are techniques through pranayam we can do that, but we'll see next. Bhagwan explains. He'll simplify this. That 11th श्लोक, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति Yadaksharam veda vido vadanti. विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः Vishanti yadyatayo vitaraga. यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति Yadikshanto brahmacharyam charanti. तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। Tatte padam sangrahena pravakshe. I shall tell you briefly about the supreme goal, that is God, who is embodiment of truth, knowledge, and bliss, which he knowers of Veda term as the indestructible,
which striving recluse free from passion enter, and desiring which the celibate practice brahmacharya. वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा. So Bhagavan is going to describe further, but three things he is saying here. One is Vedvit. वेद से मतलब ये नहीं कि वो वेद पढ़ने वाले, जिनको वेदों का सार पता है. वेद में एनी टीचिंग, इट्स नॉट जस्ट, जिन्हें शास्त्र को समझा है very various ways. So one is that who understand the real teaching. Second is yati. Yati means we can say the austerities, yatna. यति हम लोग सन्यासी को भी यति बोलते हैं. अभी तो पर्यूषण चल रहा है, लाइक अभी हमारे जैन ट्रेडिशन का पर्यूषण इज नथिंग बट यति. पर्यूषण में वो लोग तपस करते हैं हम लोग, एंड देन वी वांट टू मेक श्योर दैट आत्मशुद्धि हो, दैट इज यत्न. सो यति जो यत्न करते हैं, अगेन भगवान बोलते हैं अभ्यास तो करना पड़ेगा. एंड तीसरा है जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं. ब्रह्मचर्य का आचरण मीन्स ब्रह्म इज नॉट जस्ट अ नेम गिवन टू भगवान. ब्रह्म आचरण, एंड ब्रह्म का अगर डेफिनेशन है तो सच्चिद आनंद. अगर मैं सच्चिद आनंद का आचरण करता हूं, then that is brahmacharya. In a very different way, brahmacharya is celibacy and all those things, but that's at the physical level. Now at the psychological level, when constantly I'm engaged in the thought of truth, that is brahmacharya. It's very simple. और सजन रे झूठ मत बोलो, जो लाइन है गाने की, उसमें वो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि झूठ दूसरों से नहीं बोलना है. हम लोग उस गाने को ही समझते हैं, झूठ अपने आप से नहीं बोलना है. दैट इज तपस, दैट इज ब्रह्मचर्य. दूसरों से तो छोड़ो, बात की बात है. हमारी चिंता ये रहती है कि हम बचपन से हमें सिखाया जाता है घर में भी कि दूसरों से डोंट टेल लाई टू अदर्स. दैट टीचिंग इज रॉन्ग, राइट? अंडरस्टैंड द ट्रूथ योरसेल्फ. Once you understand the truth yourself, you are not going to, anyway you are going to, your behavior will be truthful. So no question of saying a lie, telling a lie. But our teaching is like, don't tell lie. So that is brahmacharya. The satya ka acharan, that is brahmacharya. That's what Bhagavan is saying. So vedvad means shastra ka adhyan ho, samjho, like adhyan pura sab padhna hai. Yatata means abhyas, yatna, austerity, tapas, and then brahmacharya. ये जो करेगा वो परम पद को प्राप्त हो, भगवान कहते हैं. मैं तुझे बताता हूँ, आगे बोल रहे हैं. Then we'll go to the 12th श्लोक with continuation, right? वो बता रहे हैं कैसे होगा यत्न, राइट? सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वधाराणि संयम्य, मनोहृदि निरुद्ध च, मनोहृदि निरुद्ध च, मूर्धान्य धायात्मनः प्राणम, मूर्धान्य आयात्मनः प्राणम, आस्थितो योग धारणम, आस्थितो योग धारणम. Having closed all the doors of the senses and firmly holding the mind in the great cavity of heart, and then fixing the life breath in the head, and thus remaining steadfast to yogic concentration on God, he who leaves the body and departs, uttering the one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. 12-13 को मिला दिया. नहीं, हम लोग अलग करेंगे 13, क्योंकि 13 इज द की. या 12 में तो ही इज गिविंग जस्ट 13 इज द. या नवीन भाई, यू कैन रीड 12. संपूर्ण इंद्रिय द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक रूप में स्थापित करके योग धारण में सम्यक प्रकार से स्थित, वो अभी दूसरा जोड़ देता है, स्थित हुआ ये साधक. सो ये साधक का वर्णन है, इट्स इन 12th. Yeah, right, yeah. So anyway, so Bhagavan is saying it is a kind of repeat of 10, little extra, but the key here is that all the senses, and when we do our dhyan, we have to shut down the senses, like shutting down the door. हमारे अगर घर में there are
10 doors, suppose outside and yard ke bahar bhi garage door. So I'll close the yard door, then the garage door, then the kitchen door, and then the main door. So it's like that. So we have to shut down those senses, because senses will always take the mind outside to the world. So that's what Bhagavan said, Sarva Dwarani. Dwar means senses. Senses are basically the exit, doors or windows. From through, mind is going out. For example, if I'm looking at something, eyes are not looking, the mind is looking. Eyes are not, have no brain, but the mind behind eyes. Kuch khana bhi hai, so taste is in the mind, not in the tongue. So the tongue is a sense, but tongue will make the mind go for eating something or seeing something. So Bhagavan says, pehli condition hai sanyam, Indriya Nigraha. Second chapter mein again Bhagavan is described very well, Indriya Nigraha. He's bringing the same topic here. Sense control is the key, and it is at all the level. Not only, इसीलिए हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि unless we do this practice sadhana from the childhood, it's very, very difficult to have sense control at the old age. Very difficult, and we all know that, and we all go through that. इसलिए earlier you start, stronger you will be. Otherwise वो अभी हम लोग कई बार देखते हैं ना कि we had old people, they say, अरे यार ठीक है अभी तो खा लेते हैं, देखेंगे अभी तबीयत खराब होगी तो. It's like that, because that is a sense are asking, like, eat it, go for it, craving. So that's what Bhagavan said. And then मन को हृदय में स्थिर करके, he is again talking about at the end of the life जब पहुंचेंगे, but ये practice अभी से करनी चाहिए. Then Bhagavan says, प्राण को मस्तक में स्थापन करके, you can, through practices pranayam, you can bring your breath in the between eyebrows, and that's a state where if you leave the body you will have peace. That's very technical. So that's why I said 10 and 12 shlok, they're okay if you have a lot of yogic practices and you do that, they're fine, you can do. But हमारे लिए तो तीसरा 13 श्लोक है, that is for us, and that is what so we'll read 13 श्लोक. संजय जी, Yeah, सॉरी टू बॉदर, लेकिन हृदय को मन का हृदय में निरोध करके, so can you please explain what is the procedure there, please? see, जैसे अभी लास्ट टाइम we meet at one place and हमारे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड आए थे, तो किसी ने उनको पूछा, अरे यार ये बताओ, ये मेरा दिल नहीं मानता है कि दिमाग नहीं मानता है, बताओ. अब वो कार्डियोलॉजिस्ट भी कैसे बताऊं कि दिल और दिमाग अलग अलग है. तो यहाँ पर भगवान, इफ यू कंबाइन दैट, जो भगवान कह रहे हैं, इट इज ऑल द थॉट प्रोसेस, जिसको पतंजलि ने समराइज कर दिया चित्त वृत्ति निरोध. उन्होंने एक ही शब्द दिया, वृत्ति निरोध. Actually, that's what Bhagavan is trying to say, that vritti nirodh. That अगर if you take the MRI of the brain, वो जो ऊपर नीचे हो रहा है, that should be like a straight line. That's what Bhagavan. So through मन को हृदय में स्थिर करके, so he is saying चित्त वृत्ति में सारी वृत्तियां रुक जाएं, and तो तब प्राण, जैसे टेक्निकल वैसे भी थॉट प्रोसेस रुक जाती है तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है. और ऐसा कहते हैं कि आप लोग तो डॉक्टर ज्यादा जानते हैं कि जब शरीर छूटता है तो सांस धीरे धीरे स्लो होती है. पहले वाणी जाती है, पहले ताप जाता है, बॉडी थोड़ी सी कोल्ड होती है, फिर वाणी जाती है, फिर प्राण जाता है स्लोली. दैट्स अ प्रोसेस, एंड आई एम श्योर यू नो मोर देन मी. मैंने तो पढ़ा है और देखा है, मैं देखा भी है. आई हैव टच्ड सम पीपल हु आर लिविंग एंड फेल्ट दैट. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग. ये दैट प्रोसेस ऑटोमेटिक, भगवान से यू कैन डू दैट थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस. Like you can slowly, Vinoba ji ने जैसे किया था. There are a lot of other examples. They decided, हमारे जैन मुनि लोग करते हैं, like when they do संथारा, you control that process. कि धीरे धीरे body is cooling down, then mind is, the thought is sleeping, and then प्राण is, और फिर देह छोड़ देंगे. That's what भगवान is saying. But this is very technical. अपन तो 13 पे आते हैं, that is हमारे काम कर रहे हैं. So hope Chitu, we can discuss that, but that's what he's saying, chitta vritti. No, I understood. Thank you. Yeah. So now we'll go to 13, which we'll spend few minutes on that. Om iti ekaksharam brahma. Om aditya aksharam brahma. Vyaharan mam anusmaran. Vyavaharamana manusama. Yah prajati tyajan deham. Yah priyasi tijam deham. Sayati paramam gatim. Sayati paramam gitam.
concentrate. He who leaves the body and departs, uttering the word, one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है. सो भगवान देख कितना सिंपली, पहले दो श्लोकों पर टेक्निकल बात कर रहे हैं कि वो प्राण को भ्रकुटी में लाएं. पीपल कैन डू दैट. हियर ही इज मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर अस. ही इज सेइंग, यहाँ पर नाम जप की बात आ गई. सी व्हेन ही इज सेइंग ओम इति अक्षरम, व्याहरण, व्याहरण का मतलब होता है जप, अटरिंग. भगवान इज सेइंग कि अगर ओम का जप कॉन्स्टेंटली अगर आप करें विद ब्रीदिंग ऑल्सो, लाइक वो आगे बताते भी है. And Om is कोई भी नाम हो सकता है. Here he said Om because we saw in the 17th chapter also he'll explain. वैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि सब अगर भगवान के स्वरूप को अगर एक बनाना है तो वो ओम है, ओमकार. इसलिए गुरु नानक ने तो बोल ही दिया एक ओमकार सतनाम. सत का अगर कोई, गुरु नानक के अगर सत का कोई एक रूप आप सत, आप वैसे तो सत इज ए बड़े फिलोसॉफिकल वर्ड ना, तो उन्होंने कहा अरे चलो ओम सत, सत सत बोल के कैसे बोलोगे, सत सत सत, ओम तो बोल सकते हो. And I'm sure our rishis, like, this has come from Vedic time. Guru Nanak also studied Ved. तो हमारे ऋषि ने बोला कि यार एक शब्द तो तुम बोल ही सकते हो ना, ओम. बाकी इसको शिव बोलो या राम बोलो, कृष्ण बोलो, ओम तो सभी बोल सकते हैं. That's what he's saying कि ओम का जप अगर व्याहरण, व्याहरण में अटरन, constantly if you do that, then प्रयाति त्यजेत, उस समय जब अगर ये चैंट करते हुए अगर देह छोड़ी, वो पहले वाला बड़ा टेक्निकल था, ये प्राण को बीच में लाओ ये सब करो. इसमें बड़ा सिंपल कह रहे हैं पराम गति. और ये विल डू द प्रैक्टिकल आल्सो, राइट. लॉट ऑफ पीपल से इवन इन मेडिकल साइंस दीस डेज दैट इफ वी चैंट ओम फॉर 3 minutes, and I do practically and I say it works. If you chant maybe 2 minutes ओम, अजीब सी शांति आती है, अजीब सी. एंड कहाँ से आती है, कौन लाता है, nobody knows, but that's what भगवान is saying here. इसीलिए हमारे नानक ने एक शब्द यूज किया था अजपा जप. मतलब कॉन्स्टेंटली अगर ओम जपते रहे तो अपने आप, अजपा जप मीन्स व्हेन यू डोंट डू द जप. तो हमारे यहाँ एक पद्धति भी, एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन नाम जप, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द सिंपलिस्टिक आध्यात्मिक प्रैक्टिस अगर कोई है तो नाम जप. आप यज्ञ कर लो, अभिषेक कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, आप तपस कर लो, व्रत कर लो, सब कर लो, लेकिन सबसे सिंपल जो है हमारे रामायण में भी बोला गया है और हर जगह आता है, नाम जप. कितना सरल है, कोई सा भी नाम ले लो. इसलिए भगवान ने और सिंपल कर दिया, ओम ही ले लो. सो पूरा विष्णु सहस्रनाम जो है, इट इज ऑल नाम जप, पूरा नाम जप. 1000 नाम विष्णु जी के हैं. ऐसे ललिता सहस्रनाम है, देवी के 1000 नाम है, शिव जी का है, शिव जी के 1000 नाम है, लेकिन 1000 एक ही व्यक्ति के नाम. तो उसकी फिलॉसफी ये है कि व्हेन, और आपके दिमाग में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई लुक गो टू द गोल्ड शॉप, if I am educated person who understand what is gold, what is the value of the gold, what is the gold, I look at, oh, there is a necklace, but I see the gold behind it, or there is a ring, but I see the gold in the ring, or there is a bracelet, I see the gold in the bracelet. My drashti is on the gold because they are all made of the gold. They are different, looking different. Same thing. इसलिए वो जब जो भी नाम जप करते हैं तो constantly if we keep that thought in mind, this is भगवान का नाम है. विष्णु सहस्रनाम, विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भगवत प्रभु भूत कृत भूत भावो भूतात्मा भूत, ऐसे 1000 नाम है, लेकिन इट इज ऑल भगवान विष्णु के. तो अगर आप ऐसा आंख बंद करके करें जब किसी, अब वो याद नहीं रहता विष्णु सहस्रनाम, तो हमारे ऋषियों ने बोल दिया कि चलो ओम तो कर सकते हो अगर आपको पूरा नाम. अगर हम कॉन्स्टेंटली जैसे ओम को जप करें तो आप, यू विल फील कि हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, भगवान की है, हनुमान जी की है, महावीर स्वामी की, उनके पीछे एक रिंग होती है, ऐसा रिंग बना देते हैं पीछे भगवान के. एग्जैक्टली ये नाम जब उच्चारण करते हैं, मन में भी कर सकते हैं, मन 3-4 तरह के मन में, तो एक अजीब तरीका सा एक सर्कल बन जाता है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड. मंत्र में इज डिफरेंट. मंत्र इज लाइक, और प्रार्थना है तो उसमें देयर इज अ विचार विच इज अ वैल्यू, देयर इज अ थॉट प्रोसेस. ओम जय जगदीश हरे, देन वी से
विषय विकार मिटाओ, देयर इज यू आर टॉकिंग टू भगवान कि ये खत्म करो, जैसे प्रार्थना आरती, जैसे हमने देखा था भक्त आर्त भक्त है, ये जो भक्त है चौथा भगवान ने बताया था, ये ज्ञानी, इसको ये क्लियर हो गया है कि मैं जो भी बोलूंगा नाम भगवान का ही, दैट क्लैरिटी इज देयर। अब कुछ तो बोलना है, तो उन्होंने कहा ओम बोलो। तो जब ये लगातार हम ओम बोलते हैं 3 मिनट 5 जो भी है, या विष्णु सहस्त्र नाम, तो देयर इज अ सर्कल ऑफ, जैसे कहते हैं ना वृत्तियों का, वो कहीं बाहर जाएंगी नहीं, दैट्स व्हाट दे डिपिक्टेड, राइट। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो माइंड कहीं जा ही नहीं रहा है, इट इज बाउंड टू दैट थॉट, भगवान भगवान भगवान, एंड दैट्स वेयर द शांति आती, पराम गति भगवान इज से, एंड इट इज प्रैक्टिकली डन। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने लिख दिया है, हजार बहुत लोग ना अभी भी करते हैं लोग, आई डू दैट एंड वी ऑल डू दैट, आई एम श्योर सम मेनी ऑफ अस डूइंग, एंड इट वर्क्स। तो नाम जप की इसलिए महिमा है। तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में एक आता है यानी नामानी गौणानी, और नाम जो हमारे जितने भी भगवान के नाम है, even हम लोगों के पर्सनल नाम भी होते हैं, बट छोड़ दीजिए, हमारे अंदर तो नाम इसीलिए हमारे रखे जाते हैं, चित्तरंजन, नाम हैज ए गुण बिल्ट इन टू इट। सी, भगवान के जो नाम होते हैं, जो हम लोगों के नाम भगवान के नाम से लिए जाते हैं, राम, राम इज नॉट जस्ट अ नेम, इट इज अ नेम एंड एट्रीब्यूट बिल्ट इन टू दैट। जैसे मैं सेल फोन लेने जाता हूं, तो आई एम नॉट जस्ट बाइंग दैट piece of cell phone, I am buying a chip along with the cell phone. Chip is by default in the cell phone, that's why it is a cell phone. Same thing नाम के अंदर, that's why say यानी नामानी गौणानी, ये जो नाम है ये गुण है। तो जब मैं राम 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 बोलता हूं, तो मैं राम के गुण बोलता हूं, एक राम को नहीं देखा, राम का गुण जो सत्य है, राम जो लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ति, कितनी सारे गुण है भगवान के, करुणा रूप है और धीर है। तो मैं जब राम बोलता हूँ तो मैं ये सब गुण बोलता हूँ। इसीलिए भगवान के बारे में कथा सुनने के बाद जब हम जप करते हैं ना, तो कॉन्स्टेंटली दैट पूरा भगवान का चरित्र मेरे आसपास आ जाता है। और जो ये नाम की स्मरण, इसको स्मरण बोलते हैं, इसको सुमिरन बोला है हमारे शास्त्रों ने और नानक जी ने। तो नाम स्मरण की 2 रिक्विजिट हैं, एक तो नाम होना चाहिए कोई जिसके साथ में गुण होता ही है, तो भी शिव ले लें, दुर्गा ले लें, शक्ति ले लें, हेमा ले लें, कोई भी नाम ले लें, उसके साथ गुण होता ही है। तो जब हम जप करते हैं तो गुण का जप करते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, हमारे ऋषि ने बताई, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। द रिजल्ट विल कम व्हेन देयर इज ए श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो इसलिए कि मेयर मैकेनिकल, आप कुछ नहीं बार बोलते रहो राम राम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर श्रद्धा है तो भज गोविंद में एक श्लोक आता है, गुरु नानक आदि शंकराचार्य बोलते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, किसी ने एक बार भी ठीक से भगवत गीता को पढ़ लिया, एक भी श्लोक समझ लिया, किंचित धीता, एक भी, किंचित एक भी, गंगा जल लव कणिका पीता, एक बार गंगा जल की एक ड्रॉप कणिका श्रद्धा से अगर आपने अपने मुंह में डाल ली, गंगा जल की माता है, राइट, उस श्रद्धा से गंगा जल लव कणिका पीता सकृत अपे येन कृष्ण समर्चा, एक बार कृष्ण की पूजा पूरे फुल कॉन्शियसनेस से कर दी, एक बार भी, सकृत मतलब वंस, सकृत का मतलब वंस संस्कृत में, सकृत अपि येन कृष्ण समर्चा, अर्चा मीन्स पूजा, कृष्ण की एक बार पूजा, एक बार पूरे मन से कर दी, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उस यम इज डेथ, दैट्स व्हाट द टॉपिक हियर। सबसे ज्यादा हमें डर लगता है डेथ से, तो भगवान कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, क्रियते तस्य यमेन, उस आदमी से यम भी डरता है, यम चर्चा नहीं करता है, यमेन, यम आके आपसे बात नहीं करेगा, दैट मीन्स यू हैव नो फियर ऑफ डेथ। सो गंगा किंचित दीता, भगवद गीता किंचित दीता, गंगा जल लवकणिका पीता, सकृतपे येन कृष्ण समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, एक बार ठीक से दैट फोकस से, दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। ताम, ऐसे में जब आप देह त्यजते हो तो देन यू गेट परम गति। परम गति में जाते समय आप शांत होना चाहिए, दैट्स इट। किसी ने आके बताया नहीं आज तक कि मुझे क्या मिला, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन जाते समय आप शांत है। और मेरा पर्सनल अनुभव, आई हैव सीन 2 people very closely observed, my own father, and I could see the peace that when he is leaving, he is
he knows he is leaving. That's the peace. और क्या है, आपको पता है कि आप जा रहे हो and you are saying कि I'm going, that's it. यानी कितना नहीं तो डर जाते हैं हम लोग, अरे यार ये डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ. और दूसरा विनोद भावे को I observed, he left. Oh, exactly, he knows that he's going and he's going. Everybody is watching, he's going and he's gone. That is called पराम गति. तो और आसान कितना है, भगवान कह रहे हैं जब, तो गुण चिंतन से आई सेड लाइक गुण में नाम होना चाहिए जिसका गुण हो, तो राम है या ओम है या शिव है, जो भी प्रश्न है सब में गुण है, या शक्ति है या अंबा है, जो भी नाम ले. उसके बाद उसमें जो उसका जो परिणाम आता है कि गुण चिंतन से नाम के जप करने से जो नाम के गुण होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं. कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर सेइंग राम 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 राम, एंड ऐसा हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी है, व्हाटएवर, slowly you start imbibing the quality of राम. सबसे बड़ी क्वालिटी राम की सत्य, धीर, धैर्य. कृष्ण का नाम है, जिसका भी नाम ले, शिव जी का नाम ले, वो क्वालिटी आने लगती है. तो बिकॉज द गुण इज अटैच्ड टू द नेम, सो दैट गुण इज ट्रांसफर्ड टू यू, यू स्टार्ट imbibing दैट, यू स्टार्ट इंपोर्टिंग दैट क्वालिटी, एंड देन उसके बाद गुण का विकास, लाइक देन द गुण डेवलप्स विद इन यू. अभी हम लोग तो ह्यूमन बीइंग, इतने सारे विकार हैं, तो जो गुण आएगा तो गुण हैज टू स्ट्रगल. जैसे हम लोग अभी मेडिसिन के लिए भी जाते हैं, तो वो बोलते हैं भाई इफ यू हैव टू टेक स्टैटिन फॉर कोलेस्ट्रॉल, अब भाई आपको थोड़ा घी कम करना पड़ेगा या सैचुरेटेड फैट कम करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टैटिन लेने का कोई फायदा नहीं. स्टैटिन तो ले लोगे लेकिन जब तक थोड़ा, सो सेम थिंग. इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जब के साथ साथ थोड़ा सा तपस्या होना चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य भी होना चाहिए. अदर इट वोंट वर्क. आप स्टैटिन 20 ml कर देंगे, फिर 30 mg कर देंगे, बट आप आराम से आइसक्रीम खाइए, तो स्टैटिन इज गुड. सो इसलिए नाम के साथ तो अगर वो हम करेंगे तो वो गुण का विकास होने लगता है. देन दोज कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स विल स्टार्ट बिल्डिंग, डेवलपिंग विद इन योरसेल्फ. भगवान इज सेइंग कैरेक्टर आपका बनता चला जाए, एंड उसके बाद चित्त शुद्धि होती है. दैट इज द गोल. पतंजलि से चित्त वृत्ति निरोध. चित्त वृत्ति निरोध मतलब चित्त शुद्धि. चित्त की शुद्धि होने लगती है नाम जप से. लुक एट दैट, कितनी पावरफुल है. जस्ट नाम जपना और कुछ नहीं करना. बाकी सब टेक्निक अपनी जगह सही है, प्राणायाम और ये वो, यज्ञ करो, ये करो, लेकिन ये तो इससे सरल तो क्या हो सकता है. एंड उसके बाद नाम धातु आती. नाम में जो रूट वर्ड है संस्कृत का, दैट इज नम. नाम नम से बना है. नम का मतलब होता है हम्बल, ह्यूमिलिटी. इसके लिए नाम जप करने से चित्त शुद्धि होती है. चित्त शुद्धि होने से नम्रता, नम्रता में ह्यूमिलिटी आती है. व्हाट एल्स वी नीड. आज के जमाने में सबसे अच्छी, अगर मेरा भी कोई दोस्त है या मेरा कोई फ्रेंड है, कॉलीग है, जो भी है, one thing I like in my colleague is he is very humble, because humble and ahankar cannot go together. Ego and humility cannot work together. Either of them. If humility is there, ahankar will run away automatic. अहंकार को रोल ही नहीं. आज के जमाने में सब लोग उसको पसंद करते हैं जो हम्बल होता है. डजंट मैटर दिस पर्सन इज हाई अचीवर और लो अचीवर, बट हम्बल, जिसको हम लोग विवेक बोलते हैं, विनय बोलते हैं, सॉरी विनय, सबको पसंद है विनय. तो भगवान नाम, इसलिए नाम का रूट शब्द ही नम है. नम इज ह्यूमिलिटी. कितनी पावरफुल है. नाम जब कीजिए, चित्त शुद्धि होगी, नम्रता, ह्यूमिलिटी आएगी. दैट्स इट. और भगवान कहते हैं कि रामायण में भगवान ने कई बार बोला है कि भाई मुझे तो वो प्यारा है जो सरल है. सरल में ह्यूमिलिटी, वही हम्बल. सरल आदमी सबसे प्यारा है. राम का शब्द ही सरल होता है, मंत्र भी सरल होता है, एंड दैट इज द पावर ऑफ जप. और उसके ऊपर एक हमारे ऋषियों के अलावा जैसे विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, इन लोगों ने नाम जप को सामूहिक बना दिया था. ये पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो नई बात बोल रहा हूँ. मतलब जो हुई हमारे सामने. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुराणिक कभी हुआ था सत्य. ये तो हमारे सामने हुआ. इन लोगों ने नाम जप को सामूहिक बना दिया, कलेक्टिव, एंड दैट ब्रिंग्स द यूनिटी एंड हार्मनी. इसके लिए हमारे यहाँ सामूहिक जप, इन तीनों लोगों को क्रेडिट जाता है. गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इन विनोबा भावे, वो हमेशा बोलते थे कलेक्टिव करो, सब साथ बैठ के करो, बिकॉज इट जनरेट्स दैट हार्मनी विद इन द ग्रुप. एक एकता आती. उन लोगों ने किया. आई मीन दे प्रूव्ड इट, इट वर्क्ड. एंड देयर आर रियल फैक्ट. They brought people together just by this. So that is the power of Naam. So that's what Bhagwan is saying. 13 श्लोक is very powerful. इसलिए I wanted to spend some time on this. अगले श्लोक में भगवान बोलते भी हैं तस्याहम सुलभः पार्थ. We'll see next time. ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ. सुलभ means which is, लभ means
attaining or acquiring. Sulabh means easily. For such a person who is doing jap, I am very easily accessible. I am right there. जप करने वाला अगर आदमी हमारे यहाँ हम लोग बहुत सारे भजन गाते हैं, उसमें महामंत्र है ये जपा कर राइट। उसमें एक श्लोक आता है कि वो गज ने आवाज लगाई भगवान को तो भगवान गरुड़ छोड़ के आ गए। मैंने गरुड़ यार तुम स्लो जा रहे हो, मेरा गजराज जो है मेरा एक स्टोरी है कि हाथी का पैर, द क्रोकोडाइल स्टैच, हाथी वॉज अ भक्त ऑफ भगवान, तो ही कॉल जोर जोर से, तो भगवान ने गरुड़ को बोला, तो भगवान saw that oh, if we are late then crocodile will eat this elephant. तो भगवान ने अरे छोड़ो गरुड़ में जाता हूँ तुम्हारे बिना, भक्त बुला रहा है। ये स्टोरीज हैं, स्टोरीज गिव अ मैसेज, दैट्स व्हाट भगवान। सुलभ तस्या अहम, नेक्स्ट श्लोक में आता है 14वें श्लोक में, तस्या अहम, विल सी नेक्स्ट टाइम। सुलभः पार्थ, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अजपा जप कर सकता है, जो मेरे को कॉन्स्टेंटली, उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूँ, इजीली एक्सेसिबल, आई एम राइट देयर। And there is no Bhagwan outside, we know that. Gita says it's right inside. अगर जब, इसलिए जब से जो शुद्धि होती है तो उसमें we can feel भगवान within us. कहीं बाहर जाने की जरूरत, we'll do the jap and then ध्यान, but just a story will stop with that, and next time we'll take 14th श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक है, इसका continuation है, but he is going to again नाम जप की ही बात करेंगे भगवान। So there is a story, we'll stop and then go to our dhyan. So the story goes, there was a sant in Maharashtra, उनका नाम मेरे को याद नहीं, recollect, चोखा मेला। There was a sant in Maharashtra and he was a, हमारे बीच में जो भक्ति पीरियड आया भारत में, that is from जब मुगलों का जो इन्वेजन हुआ 800 to even now, this is, we can say this is a bhakti period, because a lot of more people are towards नाम या दर्शन इस पे ज्यादा है, या भजन। तो he was around that time, नामदेव उनके गुरु थे, चोखा मेला संत थे, वो नाम ही जपते थे, and he was so engrossed इनकी, वो काम करते रहते। जैसे कबीरदास जी ने बोला है कि मैं तो ये चादर बनाता हूँ राम के लिए बनाता हूँ। He used to say every customer is राम। किसी ने पूछा कि राम के लिए किसके, अरे एवरी कस्टमर इज राम, तो मैं तो राम के लिए चादर बनाता हूँ। मतलब what a surrender, the epitome of surrender, that surrender in this is not श्रद्धा, कि सब राम के लिए कर रहा हूँ मैं। कोई भी आता है तो वो बोलते ही थे कि ये राम की चादर बन गई। So now he was like वो चैंटर, और चैंट भगवान का नाम जप करते थे वो, तो नाम हमेशा काम। तो देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन and he was constantly doing jap. जैसे भगवान ने बोले अर्जुन को कि युद्ध माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध को करते करते मेरा नाम ले, क्या प्रॉब्लम, काम करते करते ले सकते हैं, गाड़ी चला सब जगह ले सकते हैं नाम, इट्स वेरी इजी। तो वो he used to do jap. तो देयर वाज दैट, कहीं कंस्ट्रक्शन चलता था मंदिर का, and then there was a wall fell, there was a construction damage, so wall fell, a lot of people died and he also died. So like whatever workers were there all died. But itna, like the structure was so heavy and damage was that they couldn't make out who is who, because maybe the body got deformed and everything. So ये बड़ा मुश्किल हो गया कि किसकी बॉडी है। तो किसी ने बोला कि चोखा मेला जी की बॉडी यू कैन रिकॉग्नाइज। तो उन्होंने बोला अभी यहाँ तो सब, वी कैन सी बोन्स हियर, देयर इज नॉट इवन फ्लैश, बट या यू स्टिल यू कैन। सो हाउ you look at all the bones and just bring the bones close to your ear, and they say that few bones they brought and उसमें से नाम आ रहा था विठल 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 का, ये चोखा मेला जी की बोन्स। तो भगवान कहते हैं परम शांति। तो जिसको नानक ने अजपा जप कहा, ये तो उनकी स्टोरी गोज, कितनी सही है भगवान जाने, लेकिन दिस इज पॉसिबल वाइल लिविंग, कि हम जप करते रहें तो अजपा जप होने लगता है कॉन्स्टेंटली, जब अपने आप होने लगता है, फिर करना नहीं पड़ता, एंड दैट इज भगवान से परम गति। दैट्स अ जप की महिमा। आई थिंक वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन जप, बट दैट्स अ गुड टॉपिक आई लव। सो लेट्स डू जप ओम, 1 मिनट के लिए करेंगे, देन आई विल टेल द सेकंड स्टेप व्हिच आई फॉलो द प्रोसेस, एंड देन वी विल डू आवर ध्यान, बिकॉज जप की नेक्स्ट स्टेज, सो दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट आवर शास्त्र, जहां तक मैंने पढ़ा है, Patanjali में he has very clearly say कि ध्यान is one of the stage, but
all other places. भगवान ने भगवत गीता में ध्यान अलग से कहीं नहीं बोला है. भगवान is saying ध्यान is a byproduct, is an outcome of this process. तो ध्यान करना नहीं होता, ध्यान हो जाता है. जब करना है, जब करेंगे तो ध्यान हो जाए. That's our process. So we'll say Om 6, 7 times, 8 times, and let's see that when we say, I mean, I do it during the day 3, 4 minutes, 5 minutes. There's all these. जैसे भगवान ने बोला था ना, सर्वद्वाराणि संयम्य. All the senses will start automatically shutting down. The power of Om, right? So we'll say that. Take a deep breath, and then while exhaling, we say Om, right? Again, the technique here is when we are saying Om, we are just saying Bhagwan's name. Bhagwan ke gun, pure time our thought that Bhagwan's gun attribute should be there. Om is nothing but Bhagwan ke gun. After that, this is loud, like uttering, but we can say Om with, we inhale the breath twice, say Om, Om, inhale, Om, Om, hold the breath, Om, 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 4 times, exhale. So exhale is slow. That helps calming the mind, right? But you can say in mind, right? Inhale while saying Om, Om, inhale at the count of 2, 2 Om, hold for 2 Om, and exhale with 4 Om. And this is nothing but jap. We can replace this Om with Ram. Inhale Ram with 2 Ram, hold breath with 2 Ram, exhale with 4 Ram. Exhale is slow, and that's the whole reason for that. It helps nervous system to stabilize, right? So Ram, we can do Ram Ram. Now we'll start our apara prakriti to para prakriti. Means now the 5 senses are slowed down. So bring the focus to the tip of nostril and bring image of Prithvi Tattva, Bhudevi. Now shift focus to the tip of the tongue and image of Jal Tattva, Varun Devata. Now shift focus to the skin and feel the Vayu Devata or Pavan Devata. We can feel, the only way we can know Vayu is by feeling on skin. It's like a feeling of Bhagwan around me. Now shift focus to the ear and think of sound, think of Akash. Akash we cannot see, we cannot feel, but only sound we can hear, and that shows there is Akash around us. By doing this, already the senses are quietened, now they are shutting down. Now think that I am not these senses, I am not this body. That's what Bhagwan says. Sarvadvarani Sanyamya, that is Sarvadvarani Sanyamya. All the senses under control. Man Hridhi Niruddhya, Chichituva answer. Now I am not this man.
I am not this buddhi. That's what Bhagwan said there. तो आपका जो प्रश्न था, it's answered here. मन हृदय निरुद्ध. I am not चित्त. I am चैतन्यात्मा. आत्मनः च आत्मनः मूर्धनि. That is चैतन्यात्मा. And then Bhagwan says in 6th chapter, then do the Brahma Vichar. We can do just Om or say Gayatri Mantra, but just with the mantra is there, then there is a meaning. When Naam is there, there is just one meaning, Bhagwan, Bhagwan, that's it. But mantra mein pura meaning hai. So Gayatri Mantra we can say Om Bhum Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyo Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. And the essence of Gayatri Mantra is that everything is you, Bhagwan. Bhur, Bhuva, Swaha, all, everything is you. The only thing in my prayer is that take my buddhi towards you. That's it. That's a Gayatri Mantra. That's basically jap. It's सिर्फ आपका ही ध्यान बना रहे. That's what. And then Bhagwan says, Yukta Asit Matpara. Stay in that state as long as possible. And that is Yati Param Gati. That's the state. That's the state we want to be in. And Bhagwan Arjun को कह रहे हैं, you can be in this state, Mam Sarveshu Kaleshu Mam Anusmarmad Yuddhacha. All the time you can have my dhyan, even while doing the yuddha. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Krishna Kanhaiya Lal ki. Yay.